good start from Swapnil More. Not giving any room for the batsman to go for Biggie. Arbaz on strike. Swapnil to Arbaz. A dot ball. A dot ball really matters here in the evening matches, because the ball flies if it gets properly connected to the bat, so they can make a big score. Last match we just saw they completed the match, they kept 1 over and they finished the match. Good game by Team Heroes. Oh, this time Arbaz, oh, with the other drops the catch. Team Tigers looking more charged up. They've lost their first game of today. It's a wide ball. Another Yorkerland delivery. A brilliant piece of bowling from Swapnil More, not giving any room for the batsman. Arbaz looking under pressure. Santosh, you could have stopped it, throwed a fast bhag. Thank you, Sonu, for joining me. A very good evening to you. Very good evening, Ranjit. First of all, I would like to start and tell you that, we are really glad and thank you so much, Ranjit. You have taken over this commentary job really seriously and done a remarkable job. You kept on doing commentary since morning without showcasing that you're getting older and older day by day, but still the energy is there. So really, really, really appreciate your efforts that you have put in since morning. Thank you, Sonu. So let's talk about this match now. So Swapnil finishing his first over, and score is 10 run at the end of first over. We saw some couple of misfields, and there was a catch dropped by Vidyadhar Bagul as well. So what do you see? How much score should they make, Team Challengers, today? So if you look at all the past records, 55, 60 runs are easily chaseable. There are teams who have chased 61. Warriors is one of them. So anything over and above 60, 65 would be a good total defend. But we know that these challenges are different. They've scored 78 runs in the last match. They have scored the highest run against the second last team in the table. So I am not expecting anything less than 80 or 85. And in this match, if Shankar didn't play, if he doesn't play this match, okay, we should take a call and definitely ban him and should not allow him to play in the next match. So they have made certain changes in their team. If you see, earlier Sujay used to open on the other side, but we have got Deepak and Arbaz today opening for them. What would have made them do this? See, they are the leader in the table. They have the luxury of rotating their strength. But in spite of doing that, if they rotate Shankar and didn't allow him to bat, then we will say that they are experimenting.
So after first ball, challenges are now on 12 runs. काफी बेहतरीन बॉल गणेश के तरफ से और उन्हें एक डॉट बॉल मिल गई। ओवर की तीसरी गेंद और ये घुमा दिया है, क्या ये कैच हो सकता है? नहीं ये बाउंड्री हो सकता है, ये बाउंड्री है, हो गई है बाउंड्री। अमित लॉन्ग से अपने टीम मेंबर को एंकरेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए गणेश की एफर्ट को, और अगली बॉल और घुमा दिया है, क्या ये अंपायर का इशारा? वाइड। सो एक और रन से अब चैलेंजेस का स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पे। कमलेश बहुत बढ़िया ट्राई, वहां पर सिंगल हैंडेडली पकड़ना चाहते थे। जब ये बैट से निकला हमें लगा ये डेफिनेटली चौका है, बट जिस तरीके से कमलेश ने फील्डिंग करी है, और इसी की बात हम कर रहे थे कि कमलेश काफी अच्छे फील्डर हैं, बहुत ही बेहतरीन कैचेस अभी तक उन्होंने टाइगर के लिए पकड़ा है। एक मिस जस्ट जरूर हुआ, इस बार उन्होंने 4 रन जरूर अपने 3 रन जरूर अपनी टीम के लिए उन्होंने बचाए। और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद एक और बार घुमा दिया है, क्या ये कैच हो सकता है? लेकिन ये 6 हो गया है मेरे हिसाब से। ये देखना होगा जुनैद क्या है। और यहाँ पे हमने देखा टाइगर्स ने भी थोड़ा कुछ अपने बॉलिंग में चेंजेस लाए थे। उन्होंने पहली ओवर स्वप्निल को दिया था, उन्होंने दूसरी ओवर भगत से करवाई उन्होंने, अब बागुल जी का इंट्रोडक्शन किया है उन्होंने तीसरी ओवर में। सो टाइगर के 3 एक्सपीरियंस प्लेयर्स एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग करने के बाद डिसाइड किया कि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को बुलाया जाए। देखते हैं बागुल अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। और काफी अच्छी गेंद, क्या बैट्समैन 2 रन, क्या एक और रन वो चुरा पाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कमलेश ने काफी अच्छा थ्रो किया। अरबाज को थोड़ा रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे ध्यान देना होगा, और क्योंकि दीपक उनको कॉल कर रहे हैं 2-2 रन के लिए, शायद वो थोड़ा धीमे भाग रहे हैं शॉट खेल करके। बागुल की अगली गेंद और अरबाज ने खेल लिया है जुनैद की तरफ, और ये मिस फील्ड, और बहुत बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। जितनी अच्छी फील्डिंग उतना ही बेहतरीन थ्रो। हमें लगा कि जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि बॉल सर के ऊपर से चली जाएगी, बट इन्होंने इतनी बेहतरीन जंप, टाइमिंग जो थी जंप की वो बेहतरीन थी, और वो रोक पाए, और भी 3 रन अपने टीम के लिए रोके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनी, 100% एफर्ट सोनी। फिर से उन्हीं के पास, इस बार क्या ये ड्रॉप, इनसे पूछना पड़ेगा, इजी ओके? काफी मिक्स्ड फील्डिंग का एफर्ट्स टाइगर की तरफ से। 2 बेहतरीन फील्डिंग पिछले 2-3 बॉलों में हमें देखने मिली, और ये काफी, हमें बाहर से लग रहा है काफी सिंपल कैच था, बट वो नहीं कैच पकड़ पाए, और चैलेंजेस का स्कोर बढ़ते हुए 28 रन।
और संतोष है गेंद के नीचे। संतोष ने एक कैच भी नहीं छोड़ा है आज तक। उन्होंने जो भी गेंद उनके पास आई है उन्होंने 100% एफर्ट लगाया है और वो okay Junaid, do you need a physio? You're okay? Okay, thank you. सो रंजीत जी, इस ओवर के पहले जो एक मिनी कॉन्फ्रेंस था और कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने डिसाइड किया होगा, जिस स्ट्रैटेजी से उन्होंने बॉलिंग करने की कोशिश करी, प्लान जो बनाया, वो लगभग कामयाब होते हुए दिखाई दिया। और इसी तरीके से चैलेंजर्स को पहला झटका तीसरे ओवर में पहला विकेट लिया है बागुल सर ने। जी हाँ, उन्होंने आई थिंक अरबाज को एज अ नाइट वॉचमैन ऊपर भेजा था अपना, वो उन्होंने अपना काम कर लिया है। और अभी आए हैं शंकर गावड़े, अभी भी सुजय है उनके पास बैटिंग में बाकी है, सुजय की बैटिंग देखनी बाकी है, धर्मा सुरोशे की बैटिंग हमें देखनी बाकी है। तो काफ़ी बढ़िया लाइनअप है उनके पास बैटिंग का। ये देखिए शंकर, ओ मिस, यहाँ पे कौन है ये फील्डर, कौन है ये, कौन है ये? स्वप्निल मोरे ने, माय गॉड, चिकन लॉलीपॉप क्या छोड़ दिया इन्होंने। स्वप्निल मेरा कमेंट्री करने का मन ही नहीं करा, पता है, मुझे लगा कि शायद ये कैच है और मैं चेयर से उठने ही वाला था। स्वप्निल इधर देख भी नहीं। मेरी तरफ से स्वप्निल के लिए एक एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर किया जा रहा है। स्वप्निल, आप अपना एनर्जी मीटिंग में ना गवाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी चाहिए थी वहां पे उस बॉल को पकड़ने के लिए। स्वप्निल के लिए हिक हिक रे। और वो काफी महत्वपूर्ण कैच था। अगर आपने लास्ट मैच में देखा, शंकर ने जिस तरीके से वॉरियर्स के अगेंस्ट बैटिंग करी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, आपके कैप्टन कूल है, बट अमित पणिकर उस पर एक्शन लेंगे, अभी नहीं, मैच के बाद। मेरे को उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है और ये घड़ी घड़ी यूट्यूब लाइव पे दिखाया जा रहा है। स्वप्निल ने कैसा चिकन लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया है। अब विकेट कीपिंग पे अपना करिश्मा दिखाने वाले हैं स्वप्निल। सुधीर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। शंकर बुरी तरह से बीट हुए, कनेक्ट नहीं कर पाए और अंपायर का इशारा, लेग बाइस। एक और रन चैलेंजर्स के स्कोर पे जुड़ता हुआ। सुधीर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी। क्या अमित जी, ये जी हाँ, अमित ने आराम से फील्डिंग कर ली, लेकिन शंकर जितना चतुराई से वो भागते हैं, जितना तेज भागते हैं, चैलेंजर्स का स्कोर बढ़ते हुए 32 रन्स। सुधीर अगली गेंद। बढ़िया शॉट खेला है सोनू, क्या कहना चाहेंगे इस शॉट के बारे में? देखिए, जितना अच्छा शॉट था उस हिसाब से लगभग 4 रन मिलने चाहिए। फील्डिंग ही उतनी अच्छी करी, थ्रो भी काफी अच्छा किया, प्लेसमेंट काफी अच्छा है फील्डिंग का। बिल्कुल, मैं तारीफे काबिल है ये। हमने काफी मैच में देखा है, उस तरफ बॉल जाती है तो रनर्स जो हैं वो 3 रन आराम से दौड़ लेते हैं। जो भी वहां पे लेग साइड में फील्डर टीम टाइगर्स ने लगाए, सारे की सारे स्ट्रॉन्ग आर्म वाले हैं। जी सर। और फिर से कमलेश के पास, ओ मगर इस बार कमलेश ने रोक लिया है बॉल को, मगर फिर भी 2 रन चुरा लिया है कमलेश। बढ़िया ट्राई, बहुत बढ़िया ट्राई आपका रहा है, बहुत बढ़िया। कमलेश का जो पिछला एक्सपीरियंस था, जहां पे वो कैच के लिए नहीं गए और बाउंड्री बचाने गए और उनके सर से ऊपर से बॉल चली गई, इस बार उन्हें पता था कि अगर वो दोबारा रोकने की कोशिश करते तो शायद ये बॉल उनके सर के ऊपर से चली जाती। इसीलिए वो बॉल पे चार्ज किए, पूरी बॉडी ऑन द लाइन डाल के उन्होंने वो बॉल रोकी। तो काफी अच्छी फील्डिंग करी है कमलेश ने। और सुधीर की अगली गेंद और घुमा दिया है सीधा। क्या ये कैच हो सकता है? लेकिन अमित ने सेफ ऑप्शन चुना, रन बचाने के लिए वो पीछे रहे और कैच के लिए नहीं गए। जी हाँ, काफी बढ़िया सोच है इनकी, सोच की दाद देनी पड़ेगी। फंबल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि चैलेंजर्स का स्कोर अभी तक 38 रन्स हो चुके हैं, तो काफी सारे रन्स चैलेंजर्स अभी तक बना चुके हैं। ये किस दांत की बात हो रही थी?
और ये थोड़ा सा मिसफील जिसकी वजह से एक 4 रन। क्या प्लानिंग है स्वप्निल का? हमें ये Fielding रिएक्शन face कर देखना रहे होगा हैं। इस बार। अगर स्वप्निल के बॉल पे अगर कोई कैच छूटता है तो हम ये जरूर देखेंगे कि स्वप्निल का बॉडी लैंग्वेज और वो किस Reaction तरह से क्या रिएक्ट होता है? करते जी हैं। बिल्कुल। और ये पहला बॉल, ये वेट करना होगा हम यहाँ पर अंपायर के लिए। लगभग हमें पता है कि क्या होगा अंपायर का इशारा। नहीं नहीं, हम इशारे का ही वेट कर रहे थे सर, मुझे पता है, हमने कुछ डिबेट नहीं किया सर। नहीं सर, हम कोई एक कॉलर माइक अमित के लिए भी भेजा जाए प्लीज। ओ बढ़िया पिक किया है यहाँ पर दीपक ने। जुनैद फिर से बॉल के नीचे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्म रखते हैं, बहुत ही बढ़िया थ्रो। रंजीत, वो पहला जो कमलेश से एक बाउंड्री गई उसके बाद में पूरी सोच बदल गई यहाँ पे। ये कैच के लिए नहीं जा रहे, ये बाउंड्रीज रोकने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी अच्छी सोच है इनकी। और ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चैटर्जी है। स्वप्निल की अगली गेंद फिर से कमलेश आसमान में उठा दिया, क्या या ये कैच पकड़ेंगे? ओहो, और हम जिस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, हमें वही बॉडी लैंग्वेज स्वप्निल की तरफ से देखने मिला है। उन्हें पता है कि कैचेस मिस हो जाते हैं, बट लॉलीपॉप कैच में और इस कैच में फर्क होता है जरूर। लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कंपोज रखा। उन्हें पता है कि विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और काम रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहते तो बहुत कुछ है वो कहना, बट जो हिसाब से कमेंट्री हो रही है वो अपने आप को दबा के रखा है उन्होंने। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ना वो में ही है कि कौन कौन बैठे हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन मुझे काफी फोकस लग रहे हैं स्वप्निल। वो चाहकर भी हमारी कमेंट्री नहीं सुन रहे हैं। Okay, declared out. So Dharma, yes. We'll have to wait and watch here, Sonu. I think it's been declared a boundary there by square leg umpire. No. No, 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 no. One shot, one shot. Okay. One shot. Yes, Santosh. We have taken note of it. One shot. Thank you. Scorer one shot. नहीं नहीं. Yes, one shot, one shot. Scorer, one shot. Yeah, oh, we are ready to go. Yes, yes, all sorted. Thank you, sir. काफी Sonu, the अच्छी ball just missed the stumps by some picometers. It just flew away just by some picometers over the bails. काफी अच्छी बॉलिंग करी है A good comeback by Swapnil More. Though we would not forget that lollipop catch which he dropped. It has gone in the history. There are a couple of history moments that has happened today, and This I has can't. also been recorded in the YouTube live. Correct, correct.
I can't forget one of the history moment where somebody got hit wicket. See, everybody says that, today when I was, I was, when I got, नहीं. So जब हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आई एम श्योर जतिन यहाँ पर थे, वो कुछ हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि एसपीएल की हिस्ट्री में पहली बार कोई बैट्समैन हिट विकेट आउट हुआ है. लेकिन उनका स्टैट्स को हमारे प्रिय मित्र रंजीत ने तुरंत करेक्ट किया कि जो पहला होता है ना वो हमेशा याद रखा जाता है. तो चांद पे जो पहला गया है, जो पहला हिट विकेट था वो जतिन ही था. इसीलिए दूसरे हिट विकेट को कोई शायद याद ना रखे. हिस्ट्री में पहला नाम तो जतिन का ही होगा. एंड आई एम प्राउड कि दूसरा नाम अब सोनू का हो गया. उसमें कोई बैट्समैन नहीं चाहेगा, कोई बैट्समैन नहीं चाहेगा कि वो इस तरीके से आउट हो. Last over, Shankar 50 runs on the scoreboard. Another 15-20 runs. सब चाहते तो हैं कि ये मैच चैलेंजर्स जीते, बट चैलेंजर्स क्या चाहते हैं? क्योंकि काफी धीमी तरीके से वो रन बना रहे हैं. जहां पे उन्होंने पिछले मैच में 70 प्लस रन बनाए, 78 रन बनाया, बट इस मैच में अभी तक लगभग सिर्फ 52 रन ही बनाए हैं. और ये वही बैट्समैन है शंकर जिसने एक ओवर में 20 रन बनाए और अभी लगभग 20 डॉट कर चुके हैं. हमें स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही शंकर की. और स्वप्निल, ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर की सलामी है ये आप ही के लिए है, जो कैच आपने मिस किया उसके लिए. बढ़िया बॉलिंग यहाँ पर बागुल सर की, बढ़िया. काफी कम बार होता है जब बॉलर एक अच्छा बॉल डालता है और लोग उनके लिए तालियां बजाएं, बट इस बार जब बागुल जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, लोग यहां पर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं. काफी अच्छी बॉलिंग करके बीट कर रहे हैं. और इसी तरीके से, और ये बाउंड्री. क्रिकेट और फुटबॉल का कॉम्बिनेशन उन्होंने ट्राई किया था लास्ट समय पे. पैर से कोशिश किया उन्होंने किक मारने की. ये आप जरूर फुटसल के टाइम पे ट्रायल्स में आके दिखाना, आप शायद टीम में सिलेक्ट हो जाओ. सोनू, आई थिंक ये मिसफील्ड्स जो है क्या टीम टाइगर्स को भारी पड़ सकता है? जिस तरीके से अभी रन्स की गति है, सिर्फ 57 रन, 57 रन्स ऑन द बोर्ड, काफी बड़ा स्कोर नहीं है. लगभग 50 प्लस का स्कोर, 57 स्कोर्स चेज होते हुए देखे हैं हमने अभी तक पिछले 2 दिनों में. और एक बार वॉरियर्स ने भी 61 चेस किया था, जो खुद अपने आप में हिस्ट्री है. वॉरियर्स ने बहुत हिस्ट्री बनाई है पिछले 2 दिनों में, चेस करके जीता था, जिसमें हमने लास्ट ओवर में 19 रन मारे थे. अब हम वो नहीं कह सकते क्योंकि हमने भी 19 रन दिए थे. So it's the last ball of the first innings. 57 on the scoreboard. This is the 6th over in progress. The run rate has actually become a bit slow, Amit. The way they should have easily scored somewhere between 75 to 70. But unfortunately, Tigers have come back very well into the game and they have restricted them only on 57. Silent captain making no noise and showing his performance. Another dot ball, but we'll have to see here. That's a bye. There is a chance of a run out. Oh! No! Buys. By 2 runs. 2 runs coming off that last ball. Score moves on to 59 runs. So 60 is the target. काफी सारी टीम जो है वो इस समय स्टेडियम में मैच रुक के देख रही है और वो सपोर्ट चैलेंजर्स को कर रहे हैं. बट जिस तरीके से चैलेंजर्स का फर्स्ट इनिंग रहा है, 59 इज एन एवरेज स्कोर
59 is an average score, so 50, 50, 55, 60, 60s, ये एक एवरेज स्कोर है. चैलेंजर्स को काफी अच्छी बॉलिंग करनी होगी अगर वो टाइगर्स को रोकना चाहते हैं तो. सोनू, दैट इज अ गुड ऑब्जर्वेशन, बट जो पहला मैच चैलेंजर्स ने खेला था, इफ यू रिमेंबर, और यहां पे एक छोटा सा सोनू, अगर आप इस टूर्नामेंट का पहला मैच देखेंगे जहां पे चैलेंजर्स ने सिर्फ 54 रन्स बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, और वो लगभग चौथे ओवर में ऐसे लग रहा था कि मैच हार चुके हैं, बट दे हैड अ वंडरफुल कमबैक. आज का स्कोर 60 रन, ये टूर्नामेंट के जो एवरेज रन्स है उससे थोड़ी सी बेहतर है. थोड़ा चेज यहाँ पे थोड़ा मजेदार होगा, रोचक होगा, क्योंकि बैटिंग साइड को शाम का जो बेनिफिट मिलना है, धूप कम है, उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा. उम्मीद करते हैं कि टाइगर्स इस बार कुछ बेहतर प्रदर्शन करे अपने पिछले कुछ मैचेस के को छोड़ के. तो यहाँ पे उनको पूरी चांसेस है कि वो इस मैच को निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हम अभी तक के परफॉर्मेंसेस देखें, परफॉर्मेंस के हिसाब से चैलेंजर्स इस समय टॉप पे है. अपने पिछले 3 मैच जीत के 6 पॉइंट्स. दूसरे स्थान पर है किंग्स. 4 मैच में उन्होंने 2 मैच जीते हैं, 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे हैं. टाइगर्स भी 3 मैच में 4 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पे हैं. उसके बाद थंडरबर्ड्स 4 मैच और 2 जीत के साथ में 4 अंकों के साथ में वो चौथे स्थान पे हैं. और 5वां और 6वां स्थान जो है वो हीरोज और वॉरियर्स का है, जिनके पास 2-2 अंक है. इस समय अगर हम देखें तो किंग्स, टाइगर्स और थंडरबर्ड्स, इन तीनों के पास ऐसा मौका है कि वो अपने अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करके आगे निकल सकते हैं और अपने लिए सेमीफाइनल में स्थान बना सकते हैं. सोनू, सो चैलेंजर्स की सारी टीम
और सुजय, इन्होंने 6 विकेट लिए हैं इस टूर्नामेंट में। तो इस पारी की पूरी दारोमदार इन दोनों गेंदबाजों पर निर्भर होगी और ये देखना होगा कि उनकी 2-2 ओवरें किस तरह से वो चलाते हैं। पहली गेंद, कोई रन नहीं। सो जिस कॉन्टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर्स वर्सेस टॉप 3 बैट्समैन, सुजय की अगली गेंद तो सुधीर, और ये फ्लिक कर दिया है सुधीर ने। मिसफील्ड, क्या ये मिसफील्ड एक और रन देगी टाइगर्स को? जी नहीं। शंकर वहां से अपने टीममेट्स को बताते हुए, और टाइगर्स का खाता खुलते हुए अब उनका स्कोर बढ़ चुका है 1 रन। सो 2 गेंदे 1 रन। अब तक का बहुत नपातुला संतुलित गेंदबाजी। और एक बहुत बेहतरीन शॉट। और ये कमलेश की बैट से निकलता हुआ पहला चौका। तो टाइगर का स्कोर बढ़ते हुए 5 रन। इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं कमलेश। और एक और शॉट, एक और प्रयास और बहुत ही बढ़िया यहां पर फील्डिंग। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना, सबसे बेहतरीन फील्डिंग साइड जो है वो चैलेंजर्स ही रही है। तो चैलेंजर्स ने काफी अच्छी फील्डिंग करी हुई है, बॉलिंग में भी काफी अच्छे किए हैं। उनके टॉप 2 विकेट टेकर्स जो है वो है सुजय टू सुधीर। ये जो आप अभी फील्डिंग की बातें कर रहे थे, जैसा कि अभी बैकअप किया है फील्डर्स ने, एक्स्ट्रास पूरी तरह से रोका है। अच्छा ग्राउंड शॉट जिस पर 1 रन लिया। लेकिन वहीं आप सुधीर का भी एक्सपीरियंस देखोगे, उन्हें पता है कि 8-9 रन पर ओवर्स अगर बनते हैं तो वो मैच में बने रहेंगे। अभी तक 5 बॉलों में 7 रन जोड़ चुके हैं वो, और आसानी से 1-1 रन ले रहे हैं। और वहीं कमलेश ने कोशिश करी एक बड़ा शॉट देने के लिए, और कमलेश 2 रन लेने में कामयाब। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टाइगर्स का स्कोर बढ़ते हुए 9 रन। We have Mani here with us, who's going to enjoy the south part of our India. We have Mani with us, who's gonna give, or who's gonna commentary in special language which we all love. So over to Mani. Thank you. I am not responsible for this. I am giving a disclaimer. I'm sure you guys will not understand except maybe Sita and his daughter. I don't see any Tamilian here. Maybe if I talk in Malayalam, few more people will understand. But yeah. See, in communication, Mani, मैं तो तुमको गाली दिया अभी। जो भी मधुर था वो
सॉरी वो पागल की तरफ बढ़ते हैं तो पहले बॉल पे सुधीर का काफी अच्छा शॉट और 4 रन के साथ अब टाइगर्स का स्कोर बढ़ते हुए 13 रन। उन्हें 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन चाहिए और वो ऑलरेडी 13 रन बना चुके हैं। और ये दूसरी गेंद सुधीर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन शॉट और सुधीर को भी पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला। Now over to you, Mani. இப்பொழுது சேலஞ்சர் மற்றும் டைகர் டீம் இடையில் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சேலஞ்சர்ஸ் 59 ரன்கள் எடுத்துள்ளனர். அவரை பின்னோக்கி டைகர்ஸ் 17 ரன்கள் எடுத்துள்ளனர். 1.2 ओवर्स. ओके, रन रेट को तमिल में क्या बोलते हैं मालूम नहीं. ओके, ரன் ரேட் 9.21. அது அடிக்க வேண்டிய ரன் ரேட் 9.21. அடித்தார், மட்டையை சுழற்றினார், பின்னோக்கி செல்கிறது பால். அங்கே ஒரு ஃபீல்டர் வருகிறார், பாலை எடுத்து அடித்தார். சங்கர் கீப்பர். தேங்க்யூ மணி, தேங்க்யூ. जिस एनर्जी के लिए साउथ को जाना जाता है वही एनर्जी के साथ मनी ने जो बेहतरीन कमेंट्री करी है, सभी की तरफ से मनी के लिए तालियां. जो कमेंट्री में जान मनी ने डाली है, काबिले तारीफ. लेकिन उसी काबिले तारीफ के साथ हमें बात करनी होगी सुधीर के शॉट की. काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सुधीर, जो अभी अपना खुद का स्कोर हो गया 12 रन. गौरव मारवाड़ी कमेंट. आ रही हूं. एक और रन के साथ टाइगर का स्कोर बढ़ते हुए 20 रन और दूसरी ही ओवर है. जीतने के लिए 40 रन की जरूरत है 26 गेंदों में. सो इक्वेशन जो है वो काफी आसान बनता हुआ. चैलेंजर्स को बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी होगी अगर वो मैच में आना चाहते हैं तो. और जिस तरीके से हमने हमारे साउथ का एनर्जी देखा है, अब हम साउथ की तरफ से बढ़ते हुए जाते हैं ईस्ट की तरफ और हम बुलाते हैं हमारी बंगाल से कमेंटेटर सुकुमल दत्ता. तो सुकुमल का स्वागत है और वो करेंगे कमेंट्री बंगाली में, जो बहुत ही प्यारी लगती है सुनने में. डीजे से रिक्वेस्ट है कि आप बंगाल में जरूर कुछ कीजिए. শুভ সন্ধ্যা সবাইকে. ধন্যবাদ সোনু কুরিল. এখন ম্যাচ চলছে টাইগার ভার্সেস চ্যালেঞ্জার্স. চ্যালেঞ্জার্স নিজের ইনিংসে ওনারা 59 রান করেছেন. আবার এখন খুবই ভালো টাইগারদের তরফ থেকে প্রদর্শন. এখন পর্যন্ত ওরা 22 রানে আছে. 2 ওভার পরে সমাপ্ত হওয়ার পর 22 রানে দাঁড়িয়ে আছেন চ্যালেঞ্জার্স, যেখানে সুধীর যে এই এসপিএল টুর্নামেন্টের খুবই ভালো ব্যাটসম্যান. কারেন্ট রান রেট 11 আর রান রেট যেটা দরকার বাকি 4 ওভারে সেটা 9.5. আর আমি ডিজে কে রিকোয়েস্ট করছি যে একটা বাংলা গান চালিয়ে দিন প্লিজ. আমি অনুরোধ করছি আমার লাইন ম্যানেজারকে, উনি যেন এসে তাড়াতাড়ি এসে রাজস্থানে এসে মারवाड़ी কিছু বলুন. जैसे कि हम कह रहे थे कि भाई एक एनर्जी से हम गए हैं ईस्ट की तरफ जो बहुत सुनने में प्यारी लगती है और
हमारे बांग्ला कमेंटेटर सुकुमल का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें बंगाली लैंग्वेज में कमेंट्री करी, काफी सुनने में प्यारा लगा। अगर हम अभी मैच की तरफ बढ़ते हैं, सो टाइगर का जो स्कोर है वो चुका है 22 रन। बालाजी इस इनिंग की तीसरी बॉल को डालते हुए, जिस तरीके से अगर आप माहौल देखो, चैलेंजर्स बहुत कोशिश कर रही है कि वो अपना मनोबल बढ़ा के रखे। फील्डिंग में काफी कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं शंकर और बालाजी, बट टाइगर्स की इस मैच में काफी अच्छी पकड़। और यह अंपायर का इशारा वन के साथ अब स्कोर बढ़ते हुए 24 रन्स। जीतने के लिए अब सिर्फ 36 रन चाहिए, वो भी 22 बॉलों पे। सो अब हम एनर्जी के बाद हम गए थे हमारे ईस्ट में बंगाल के पास, काफी मधुर वाणी के बाद अब हमें कुछ और एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए हम दोबारा साउथ की तरफ बढ़ते हुए, और हमारे पास साउथ के सुपरस्टार विष्णु इस समय आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। और विष्णु जो है वो हमें ये कमेंट्री अब मलयालम इस लैंग्वेज में करके सुनाएंगे। एंड आई एम श्योर मलयालम जिस एनर्जी के लिए हम जाने जाते हैं, विष्णु वही एनर्जी अब अपनी कमेंट्री पे लेकर आएंगे। सो बालाजी टू कमलेश, काफी अच्छी बॉल थी ये, डॉट बॉल नहीं, रन आउट का चांस, अंपायर का इशारा 22, एक रन चुरा लिया है कमलेश ने। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं विष्णु हमारे सुपरस्टार फ्रॉम मलयालम, प्लीज टेक ओवर। നന്ദിയുണ്ട് സോനു, താങ്ക് യു. ടൈഗേഴ്സ് അടുത്തതായി ബാലാജി സാർ ഒരു നല്ലൊരു ബോളിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. സാർ ആ കണ്ണാടി മാറ്റി എറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും. വരുന്നില്ല സാർ, ആ കണ്ണാടി മാറ്റി എറിയൂ. ഔട്ട്! ബാലാജി സാറുടെ ഒരു തകർപ്പൻ ബോളിൽ ഇതാ ഔട്ടായിരിക്കുന്നു.
हाथ पे आई और राहुल ने जब एंड में बॉल पकड़ के फेंकने की कोशिश करी, उस समय राहुल के हाथ में बॉल थी और उनका पैर बाउंड्री लाइन पे था। हेंस वो जो रन है वो 4 दिए गए हैं। धर्मा, आपका पैर नहीं लगा था, बट आखिरी थ्रो जब आखिरी बार जब राहुल ने थ्रो किया उस समय उनका पैर बाउंड्री लाइन पे था। और ये बैट से 2 बैक टू बैक चौके। कीपर के सर के ऊपर से बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। 3 लगातार चौके सुधीर के बैट से, और स्वप्निल जिन्होंने एक बाद में चालीस पे 1। सुधीर ने रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश करी, अंपायर का इशारा लेग बाय, और एक और रन टाइगर्स के खाते में जुड़ते हुए रन हो चुके हैं 41। ओवर की आखिरी गेंद, मैच जीतने के लिए टाइगर्स को चाहिए 19 रन 13 गेंदों पे। सो 19 रन फ्रॉम 13 बॉल्स। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो टाइगर्स के पकड़ में है। मैच की शुरुआत में वो 10 रन्स पर ओवर थी, बट अब वो गिर के हो चुकी है 8 रन्स पर ओवर। ओवर की आखिरी गेंद और सामना करने आएंगे स्वप्निल जो अपना पहला बॉल खेल रहे हैं, वो काफी समय से क्रीज पर हैं, बट उन्हें रन्स बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुधीर दूसरी तरफ जो है उन्होंने अभी तक 30 रन बना लिए हैं 16 गेंदों में, और 5 चौके अभी तक उन्होंने अपने इनिंग्स में लगाए हैं। सो स्वप्निल अपनी पहली बॉल फेस करते हुए शंकर की, काफी अच्छा बॉल। स्वप्निल ने ये बॉल मिस किया, कट करना चाहते थे बट बिल्कुल बीट हुए हुए। 4 ओवर के बाद टाइगर्स का स्कोर अब है 41 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और जीतने के लिए अभी भी टाइगर्स को जरूरत है 19 रनों की 12 बॉलों पे। ओवर डालने के लिए आ रहे हैं सुजय को पता है कितना महत्वपूर्ण ओवर है ये,
अगर उन्होंने ये ओवर काफी टाइट रखा और सुधीर या स्वप्निल में से किसी का विकेट ले पाए तो मैच काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। सुजय का पहला बॉल काफी अच्छे तरीके से सुधीर काफी आसानी से 2 रन उन्होंने अपने खाते में ऐड कर लिया और अब रन्स जीतने के लिए चाहिए 17 रन 11 गेंदों में। सुजय ने देख लिया था, भाप लिया था कि सुधीर अपनी क्रीज छोड़कर बाहर आ रहे थे बड़ा शॉट लगाने के लिए, बट काफी अच्छी बॉल उन्होंने दूर रखी थी बैट्समैन से और उतना ही अच्छा इंप्रोवाइजेशन सुधीर की तरफ से भी देखा गया। उन्होंने लेट कट करके 2 रन और जोड़ लिए टाइगर्स के खाते पे। अब जीतने के लिए टाइगर्स को चाहिए 15 रन 10 गेंदों में। सुजय अगली बॉल डालते हुए सुधीर को, और ये रिवर्स फ्लिप, क्या ये कैच हो सकता है? एक और मिस चांस, काफी मिस चांस दिया गया है चैलेंजर्स की तरफ से और वही उन्हीं को काफी महंगा पड़ेगा क्योंकि सुधीर जो खुद 35 रन बना चुके हैं, उनके 2-3 कैचेस जो मिस हुए हैं वो काफी महंगे पड़ रहे हैं चैलेंजर्स को। टाइगर्स को जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत 9 गेंदों पे। स्वप्निल जो पहला बॉल मिस कर चुके थे, अपनी इनिंग की वो दूसरी बॉल फेस कर रहे हैं सुजय से, और देखते हैं वो क्या करते हैं। घुमा दिया है उन्होंने, कोई फील्डर नहीं है वहां पर। बना ली है। जीतने के लिए उन्हें सिर्फ 10 रनों की जरूरत है 8 गेंदों में। 10 रनों की जरूरत है जीतने के लिए 8 गेंदों में। देखते हैं सुजय क्या अपने टीम को इस मैच में दोबारा ले आ पाएंगे। अगर वो चाहते हैं इस मैच पे आना तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ विकेट लेना होगा, और ये जो 2 खिलाड़ी हैं इस समय क्रीज पर, उनका अगर विकेट मिल जाए तो चैलेंजर्स मैच में दोबारा आ सकते हैं। जीतने के लिए 10 रन 8 गेंदों में। एक और रन के साथ सूत्रों से पता गया चला है। कौन सी टीम है तुम्हारी भाई? मना ना है भाई, मारवाड़ी। कौन बैटिंग कर रहा है? सुधीर, स्वप्निल। लोनावला बहुत दूर है, पिछले साल का 5 स्टार भी है अभी, तो बहकावे में ना आए और अपनी अक्कल लगाएं। 5 स्टार चॉकलेट अमित पानेकर जी खिलाएंगे।
चैलेंजर्स से रिक्वेस्ट है कि मैच जल्द से जल्द खेला जाए क्योंकि हम काफी ओवर टाइम जा चुके हैं। चैलेंजर्स से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द मैच शुरू करें, हम ऑलरेडी टाइम से पीछे हैं। स्वप्निल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बहस ना करें, हम ऑलरेडी बिहाइंड है समय से। देखो इसी से हो सकता है कि स्वप्निल आप मोमेंटम रोक रहे हो सकता है कि ये मोमेंटम जो है अब वो चेंज हो जाए, टाइगर्स की तरफ से वो चैलेंजर्स की तरफ जा सकता है। आपका फोकस जो है वो बैटिंग की तरफ होना चाहिए क्योंकि जीतने के लिए आपको सिर्फ 8 रनों की जरूरत है 6 गेंदों में। और ये बहुत ही ऊपर गई है गेंद, बहुत ही खूबसूरती से सुजय ने उसको लपक लिया है। इसी की हम बात कर रहे थे कि हो सकता है कि मोमेंट होता है उसमें आप जितना रन मार सको उतना आप मारिए। बट पहले बॉल पे सुधीर काफी इंपॉर्टेंट विकेट। और सोनू, क्या आपको लगता है कि ये सुधीर का सिर्फ कैच नहीं, ये टाइगर्स का मैच लपका है सुजय ने? देखिए सुधीर बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट जरूर था बट इक्वेशन अभी भी ऐसी नहीं है कि टाइगर्स इसको अचीव ना कर पाए। 8 रन 5 गेंदों में, अब इस 1 रन के साथ टाइगर्स को जीतने के लिए चाहिए 7 रन 4 गेंदों में। सो इक्वेशन जो है वो जरूर इजी है लेकिन पहले बॉल पे विकेट मिलने के बाद जब पहली बॉल पे विकेट जाता है तो मोमेंटम जो है वो फील्डिंग टीम की तरफ जरूर शिफ्ट हो जाता है। देखना होगा कि अब स्वप्निल क्या करने वाले हैं। जिस तरह से वो फील्डिंग को ओवर की तीसरी गेंद बालाजी टू स्वप्निल, देख घुमा दिया है स्वप्निल ने, कोशिश है उनकी 2 रन लेने की और ये मिसफील्ड। और ये बहुत बढ़िया तरीके से अपने फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए गेंद को रोक के दोबारा समय रहते फेंक दिया है। मालू का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। बालाजी जो पिछले मैच में लगभग 4 से 5 ही रन दिए थे और अपनी टीम को जिताए थे, उसी तरीके से चैलेंजर्स उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस बार भी। और ये एक और एक्स्ट्रा। बालाजी नो आर्ग्यूमेंट्स विद अंपायर प्लीज। अगर ये बॉल डॉट हो जाती तो मैच काफी इंटरेस्टिंग हो जाता बट एक एक्स्ट्रा रन के साथ अब मैच जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की जरूरत है 3 गेंदों में। और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट